Hello, hi, welcome. I'm Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. So, as you all know, that I have started the Joyful Talk Show, Joyful Journey, Your Path to Happiness. Today, I have an esteemed guest with me, Mrs. Preeti Karnavar. She is also a very good friend of mine. So thank you so much, Preeti ji, for coming and accepting my invite. Thank you, Preeti, for inviting me on your show. It's a real pleasure to be here. Thank you, ma'am. Thank you so much, and my pleasure too. So before we start and I introduce the topic, I would like to give a small highlight of Preeti ji, that Mrs. Preeti Karnavar ji is the founder of Divya Swarsh Holistic Center. She is a certified expert in parenting coaching, career strategies, child psychology, dietetics, Sujok therapy, and acupressure. Wow, so many things. Dedicated to holistic wellness, Preeti ji favors natural treatment over the medications, empowering parents and children to manage anxiety and stress. Through personalized coaching and DMIT, she guides individuals on their career journeys. Preeti ji's extensive expertise and commitment make her a distinguished advocate for holistic and well-being and personal growth, for the personal growth of the people. So, wow, ma'am, you have such a great profile. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. Would you like to add something about yourself? Means I just gave a crisp of yours, but I would love. Anu, you have already said everything about me. That's a very good introduction you have given. Thank you very much. And yes, I don't believe in medicines. ऐसा नहीं है कि एलोपैथी and all that I don't believe, but I prefer non-medicinal treatment more. Every pathy has its own role. Even in counseling the kids and all, I always tell them, don't give your kids some anxiety pills. Don't give them any anti-anxiety or hyperactive pills which will lower their energy. Instead, put them in sports, put them in activities where their energy is bursted. So I am not against any pathy, but yes, I don't like medicines, so that's why I practice this pathy. Lovely, lovely. This is wonderful, and I would love to know more about this. So, before introducing the topic, as I have mentioned, that ma'am is also a parenting coach. So, today's topic for the discussion is breaking the cycle, overcoming the toxic parenting. Now, my first question, Preeti ji, to you is that what is toxic parenting? ये toxic parenting होती क्या है? देखिए, एक्चुअली टॉक्सिक पेरेंटिंग वो होती है जिसमें पेरेंट्स को भी नहीं पता दे आर प्रैक्टिसिंग टॉक्सिक पेरेंटिंग। Oh, उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने बच्चे को एक अथॉरिटी के साथ पाल रहे हैं, but actually they are, with their behavior, with their actions, they are negatively affecting the emotional and physical well-being of the child. बार बार क्रिटिसाइज करना बच्चे को, बार बार उसको नाम से बुलाना कि यू आर अ डफर, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, बस पूरा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है सोफे पे या बैठी रहती है सोफे पे, कुछ काम आता नहीं है, क्या करोगे जब बड़े हो जाओगे। तो दिस इज ऑल टॉक्सिक पेरेंटिंग। और वहीं पे अथॉरिटी पेरेंटिंग होती है जहां पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, ओबीडियंस मेंटेन होता है। तो पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं हम लोग तो अथॉरिटी पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चे को, हम थोड़े ना टॉक्सिक पेरेंटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसका इमोशनल इफेक्ट बच्चे पे क्या हो रहा है। अगर आप एक बूंद पानी की रोज पत्थर पे डालते रहोगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद वो पत्थर में छेद हो जाएगा। right. तो वैसे ही अगर आप कंटिन्यूअसली एक बच्चे के माइंड में डालते रहोगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अ डफर, यू आर अ डफर, तो वो वर्ड्स, उसके सॉफ्टवेयर, इट्स लाइक अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, योर ब्रेन रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी वर्ड। तो वो उसके दिमाग में बैठता जाता है। तो आई एम गुड फॉर नथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, आई एम नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। वो उसके दिमाग में बैठ गया। अब क्या होगा इससे, फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होने लगता है। एंड देन पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमारा बच्चा हमारे साथ बैठता ही नहीं, हमारे साथ बात करता ही नहीं, आप हमेशा, मतलब वो तो हमेशा मोबाइल पे रहता है या ही लाइक्स टू बी विद द फ्रेंड्स। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि why the child is getting away from you, because continuously when the child is sitting with you, you're criticizing him. You say, don't do this, don't sit like that, sit properly,
मतलब अपने घर में आप अपने बच्चे को एक फ्रीडम नहीं दे रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड दैट ही शुड। और वही जब वो बच्चा बाहर जा रहा है, दूसरे उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी वो जो प्रेज की भूख है जो Right. घर में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो बाहर जाके सेटिस्फाई हो रही है। Absolutely. सो इससे बच्चे का पूरा इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है उसके इमोशंस पे। Right. By your conversation, I can make out that intentionally parents are not doing this, but they are not aware of it. कि जब वो टैगिंग कर देते हैं बच्चों को, तो वो एक तरीके से उनको जो है इमोशनली हिंडर भी कर रहे हैं, एंड प्लस दैट इज क्रिएटिंग अ टॉक्सिक पेरेंटिंग, जो मतलब उनकी तरफ से तो वो अथॉरिटेरियन है, लेकिन वो टॉक्सिक में बदल जा रहा है। हाँ, वो टॉक्सिक में बदल जा रहा है। और क्या होता है ना, ये सब हमारे जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे फादर ने भी हमें बेल्ट से मारा था, हमारे फादर भी हमें डंडे से मारते थे। अरे मेरे फादर तो अभी भी मुझे मारते हैं। माय गुडनेस। So today I am handling such a big business, ma'am. I have a parent. I'm handling such a big business. I've got three branches. One is in Bombay, one is in Indore, one is in UP. So you think ऐसे ही आ गया? अगर मेरे डैड ने मुझे बचपन में मार मार के नहीं किया होता तो आज मैं उस पोजीशन में नहीं बैठता। तो ठीक है, आपके डैड ने आपको मारा, तो उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? राइट। आपने अपने डैड को, आपके डैड अभी रहते हैं नेटिव प्लेस में, आप इधर रहते हो, अगर आप उसकी हिस्ट्री जानोगे ना पेरेंट की, वो अपने डैड से कम 6 महीने में एक बार बात करते हैं। सो इतना ही अगर आपको कॉन्फिडेंस था कि आपके डैड ने आपको मारा एंड देन यू गॉट दिस बिजनेस, then why are you not talking to your parents? Maybe now he needs you more, that राइट। parent needs you more, but you're not talking, you're avoiding to talk to your parent. Why? राइट। Because he shouts at you at this moment also. उनकी जनरेशन में वैसा हुआ था, आपकी जनरेशन में वैसा हुआ, एंड यू। इसलिए वो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही है कि नेवर जज योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग, दे आर बोर्न इन डिफरेंट एरा। वाओ। यू नो दिस इज सो राइटली सेड कि हमें जो पेरेंटिंग मिली, जरूरी नहीं है कि हम वही पेरेंटिंग अपने बच्चों को दें। बिल्कुल। पेरेंटिंग इज एक्चुअली अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। ये ना एक ऐसी स्टडी है जो आप हर स्टेप पे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। बिल्कुल। जो पेरेंट्स हमेशा निग्लेक्ट कर लेते, वो सोचते हैं जो ओल्ड पेरेंटिंग कैरेट एंड स्टिक वाली थी ना, वही काम आएगी, मतलब हम्म। डंडा मारो और बच्चे से काम कराओ। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत हाईटेक बच्चे, मैं उनको हाईटेक बच्चे बुलाती हूँ, बिकॉज उनके पास इतना नॉलेज है ना जो आपके और मेरे पास भी अभी नहीं होगा। बिल्कुल सही। यू गेट टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू फ्रॉम देम। राइट। The greatest thing you have shared about Rabindranath Tagore ji का quotation also, and the name you have given, carrot and stick parenting आज के time पे नहीं चलती. So this is the basic thing the parents need to know about this, कि कैरेट और पेरेंटिंग के अलावा जो है बहुत सारी चीज़ों पे अभी हम बात भी करेंगे, आपसे पूछूंगी कि कैसे इस चीज़ को किया जाता है। बट पहले आप ये थोड़ा इंडिकेट कीजिए कि कैसे पेरेंट्स, ये कौन सा ऐसा साइन है कि जिस तरीके से बच्चे के साथ जब वो इंटरेक्ट करें तो उनको पता चल जाए कि हाँ, हम टॉक्सिक पेरेंटिंग में, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं। साइन एक एक होता है कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म, बच्चे को बार बार बोलते रहना कि यू राइट। आर एक्चुअली नॉट डूइंग दिस राइट, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम क्या कर रहे हो। दूसरा एक होता है जब पेरेंट्स के बीच में अपना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बच्चों के सामने करना, बच्चा इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फिर बच्चा अगर अपनी मन की बात अपनी मम्मी को या अपने डैडी को कहना चाहता है, तो फिर वो सोचता है कि अरे ये तो वैसे ही झगड़ रहे हैं, अब मेरे मन की बात मैं बोलूंगा तो वापस झगड़ा हो जाएगा। और आप देखिए 90% ऑफ झगड़े जब पेरेंट्स के बीच में होते हैं ना, बच्चे को लेके होते हैं। यस। एक पेरेंट बच्चे को कंट्रोल कर रहा है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, दूसरा पेरेंट इंटरवीन करेगा कि नहीं बराबर तो है। तो जो फर्स्ट पेरेंट है वो गुस्सा हो जाएगा, मदर और फादर जो भी कर रहा है, एंड देन इट स्टार्ट। फिर बाद में क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे बच्चे को कि तुम्हारी वजह से देखो अभी हमारे झगड़े हो जाएंगे, हमारे झगड़े स्टार्ट हो गए, यू विल बी द कॉज ऑफ आर डिवोर्स, यू विल बी द कॉज ऑफ आर सेपरेशन। बेसिकली आई हैव हर्ड फ्रॉम माय किड्स, दे से मैम हम पापा मम्मी को कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हमारी वजह से उनके झगड़े हो जाते हैं, एंड देन दे से यू विल बी द कॉज ऑफ डिवोर्स। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड का डिवोर्स हुआ है ना पेरेंट्स का, ही इज रियली लोनली। सो ये बच्चे में एक फियर डेवलप आपने कर दिया। फिर फेवरेटिज्म, एक बड़ा बच्चा है और एक छोटा बच्चा है। यूजुअली क्या होता है, छोटा आने के बाद बड़ा अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगता है। सो देन दे
बट एक्सपेल इन अ डिफरेंट वे। छोटे को हम थोड़ा पैम्पर कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, तो थोड़ा छोटा अलग हो जाता है। फिर एक एज आती है जब यू एक्सपेक्ट दैट छोटा वाला भी वैसे ही बिहेव करे, तो आपने ही उसको वो बिहेवियर नहीं दिया। Right. यू ओवर प्रोटेक्टेड हिम, यू Yes. ओवर मीन माइक्रो Absolutely. मैनेजमेंट किया आपने उस बच्चे का। आपने उसका सॉक से लेके, शूज से लेके, पानी की बोतल से लेके, उसका होमवर्क करने से लेके, आपने उसको सब कुछ हाथ में दे दिया। एंड एट द एज ऑफ 14 यू एक्सपेक्ट कि वो चाइल्ड सब अपने आप करे, तो फिर वो नहीं करेगा। यू शुड हैव स्टार्टेड दैट अर्लियर Right. कि नहीं बेटा, अब तुमको अपने आप मैनेज करना है। यू हैव टू प्लान योर टाइम टेबल योर सेल्फ, यू हैव टू फिल योर वाटर बॉटल एटलीस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू पैक योर बैग्स, यू हैव टू गेट योर यूनिफॉर्म रेडी बिफोर गोइंग टू स्कूल। ये सब एक बच्चा खुद से जब करने लगता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब आपने इतने साल उसको इतना ओवर पैम्परिंग कर दिया, एंड देन यू एक्सपेक्ट, फिर बोलते देखो तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन कितनी इंडिपेंडेंट है, एंड लुक एट यू, व्हाट आर यू, व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ। कंपैरिजन। देन फेवरेट, बच्चे को लगता है दैट एल्डर साइड चाइल्ड इज फेवरेट, तो बच्चा डिटैच होने लगता है अपने पेरेंट्स से। Right. Then the child is coming to you with some problem, and you are sitting on your laptop, you're working, or you're busy scrolling on your mobile insta pages, and then you say नहीं नहीं अभी नहीं यार बेटा, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, I cannot solve your problem। आपने बच्चे को धुतकार दिया उधर, गो। तो बच्चा क्या करेगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेके जाता हूँ तो मेरे पेरेंट के पास टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने का। Yes. So, सो दिस इज ऑल व्हाट इज टॉक्सिक पेरेंटिंग। और इससे फिर क्या होगा कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है, फिर उसमें अंदर ही अंदर एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, वो बहुत एंग्शियस हो जाता है। फिर हम बोलते हैं बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। अब एडीएचडी और ऐसे एंजाइटी वाले किड्स में बहुत डिफरेंस है, लेकिन व्हेन यू गो फॉर टेस्टिंग ना, दे विल पुट यू बॉर्डरलाइन एडीएचडी, फर्स्ट ग्रेड एडीएचडी। दैट इज नॉट ट्रू, because you have to, when you sit and talk to the child, you come to know that the parent doesn't have time for the child, and then financial stress होता है पेरेंट्स में। पेरेंट्स अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कहाँ उतारते हैं, या तो फिर वाइफ के ऊपर उतारेगा, या वाइफ हस्बैंड के ऊपर उतारेगी, और नहीं तो दोनों को अगर बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो बच्चे के ऊपर उतारेंगे। मैंने अक्सर देखा है, एज माई किड्स आर इनटू स्पोर्ट्स, आई हैव बीन इन एरिना ओवर देयर, आई हैव सीन दैट जब बच्चा मैच हार के आता है, पेरेंट्स सबके सामने उसको झापड़ मारते थे। मतलब वो बच्चे का तो एक तो बेचारा वैसे ही हार के है या हार के आई है, और तुमने सीधा से उसको एक झापड़ मार दिया और बोल दिया ये क्या खेल के आई है, इतना बेकार खेलती है, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। बच्चा वैसे ही लो एस्टीम में था, आपने 10 जन के सामने उसको कर दिया, और वो टीनेज स्टेज में है जहां पे अभी उसको ऐसा लगता है कि मेरी एक इमेज बननी चाहिए। एक टीनेज वो ब्लूमिंग एज होती है बच्चे की, दे आर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द बड, दे आर बिकमिंग अ फ्लावर। सो वो बच्चा फिर ऐसे होने लगता है कि नो, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग टू माई डैड, आई कैन नॉट टेल एनीथिंग टू मामा। तो फिर कई बार क्या होता है, हारता है उधर ही बच्चा फिर बैक आंसर भी करने लगे हैं आजकल बच्चों, पेरेंट्स को। दे से आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, एंड दे जस्ट वॉक ऑफ। फिर पेरेंट को इंसल्टेड फील होता है, इतने साल तक कभी कुछ बोला नहीं, तो आप ही ने तो मौका दिया ना उसको। so true. You could have taken your child to a side and spoken to your child कि क्या हो गया बच्चा, why did you lose, what happened, were you able to do it, or why didn't you do it। ऐसे मतलब थोड़ा प्यार, क्योंकि उस समय उसका ऑलरेडी एस्टीम लो है। ऐसे ही रिजल्ट्स के लिए आप जाओ ओपन हाउस में, बच्चे की 1 मार्क कम आती है सिली मिस्टेक की तरफ, पेरेंट उधर ही सबके सामने उसको झापड़ मार देते। दिस इज ऑल इज टॉक्सिक पेरेंटिंग। जो पेरेंट को लगता नहीं है कि वो कर रहा है, उसको लगता है आई एम राइट, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू एक्सेल, बट दिस इज नॉट, योर चाइल्ड इज गोइंग बिहाइंड, यू आर ट्राइंग टू पुट योर चाइल्ड 100 steps ahead, he is going 200 steps behind। राइट। आपकी कॉन्वर्सेशन से ये चीज़ समझ में आई मुझे कि एक तो हमको टैगिंग जब हम कर देते हैं या पेरेंट्स कर देते हैं, तो एक तो वो चीज़ टॉक्सिक पेरेंटिंग में आ जाती है। सेकंड, जब आप कंपेयर कर देते हो अपने मतलब अपने ही बच्चों में, 2 बच्चे कभी भी सिमिलर नहीं होते, बट यू आर कंपेयरिंग द सिबलिंग्स आल्सो कि बड़े ने ऐसा किया है तो छोटा भी ऐसा ही करे। यू हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टेशंस। एंड सेकंड थर्डली दैट हस्बैंड वाइफ के बीच में ही कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो बच्चे को कैसे आप वो हैंडल कर पाओगे। Right. So these are the small signals that I am sure that these audience will also get to know about it. And एक चीज़ और, आपने अभी अपने बच्चों के बारे में मेंशन किया, प्लीज थोड़ा डिटेल में बताओ कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं एंड व्हाट डू दे डू। I have 2 sons. One is 20 years old and one is 15 years old. There's a 5 years gap between them. And both my kids are into table tennis.
So they play national, states and national level. They are yet developing kids. आएंगे शायद आगे जाके, but बिल्कुल अगर आएंगे। नहीं भी आए तो I know that sports have made them a better person. Right, right. बिकॉज स्पोर्ट्स में उन्होंने सब कुछ देखा है, फेलियर देखा है, विन देखा है, जिससे उनका मेंटल वेलबींग है। एंड सेकेंडली, मैं भी बोलती थी मेरे किड्स आर हाइपर एक्टिव, मतलब दे हैव टू मच ऑफ एनर्जी इन देम, बिकॉज नाउ डेज किड्स आर टोटली ऑन फोन, तो वो एनर्जी बर्स्ट नहीं होता। हम और आप कैसे खेला करते थे, लॉक एंड की खेलते थे, छुपा छुपी खेलते थे, कितने सारे गेम्स भागा भागी के खेलते थे जो आज के बच्चे नहीं खेलते। तो इनको जब मैंने स्पोर्ट्स में डाला, दे एनर्जी वेंट आउट, दे हैड दैट लेट आउट थिंग। सो वो एग्रेशन, वो एंजाइटी लेवल कम है इन बच्चों में जो स्पोर्ट्स में रहते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि करियर के हिसाब से नहीं, बट एज एन एक्टिविटी पुट योर किड्स इनटू स्पोर्ट्स। Right, right, absolutely. And a great blessing to your kids that they are definitely going to थैंक यू, create wonders in this, thank you. since such a Actually, great it's a team understanding mom. support. Without my husband's support, it wouldn't be possible. That's why. Credit goes to sir also. Yeah, yeah. Okay. Now the next question is, आपने अभी ये कॉमन साइन भी बता दिए पेरेंट्स के क्या होते हैं कि किस टाइप से वो एंगेज हो जाते हैं उसमें। Now what are the psychological effects इस टॉक्सिक पेरेंटिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों? कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल अभी इफेक्ट्स होते हैं बच्चों पे? हाँ होते हैं। शॉर्ट टर्म में उनको एंजाइटीज बहुत हो जाती है, रूड हो जाते हैं, एंड दे फील वेरी लो एट एस्टीम। दे फील दैट मतलब आई एम नॉट वर्थ इट, तो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना बंद करते हैं। दे बिकम शाई, दे बिकम इंट्रोवर्ट, they start building up in themselves that I'm good for nothing, I cannot do anything, and then their study grades also go down. They stop talking to the people, they don't like to communicate with people because they don't have that confidence in them. And as they grow up, this goes on piling up और एक बड़ा सा एकदम कहते हैं बिल्डिंग बन जाता है। तो वो जब बिल्डअप हो जाता है तो उनको आगे जाके रिलेशनशिप्स इश्यूज में भी प्रॉब्लम आते हैं। यूजुअली आई हैव सीन दिस टॉक्सिक पेरेंटिंग के जो रहते हैं ना, तो उन्होंने देखा रहता है कि माय फादर इज हिटिंग, सो उनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी वैसा ही वो लोग चूज करते ओह, हैं। आके बोलते हैं माय हस्बैंड इज हिटिंग, इट्स अ लव मैरिज बट माय हस्बैंड हिट्स मी अ लॉट, इट्स ओके, माय फादर आल्सो यूज्ड टू हिट मी अ लॉट, सो आई एम यूज्ड टू इट मैम। सो एंड देन या तो फिर वाइफ हस्बैंड को मार रही है, ओके माय मदर यूज्ड टू हिट मी अ लॉट सो माय वाइफ आल्सो हिट्स, सो आई एम यूज्ड टू इट। तो वो लोग रिलेशनशिप भी वैसा ही चूज करते हैं, दे अट्रैक्ट दोस पीपल ओनली टुवर्ड्स देम। फिर उनका जो डिप्रेशन लेवल होता है, मेंटल लेवल, दैट गोज वेरी डीप। दे डोंट फील वर्थ, दे फील होपलेस, दे फील स्केर्ड टू बिल्ड एनीथिंग। अगर उनको कुछ अगर बिजनेस करना है तो वो लोग 10 बार सोचेंगे कि मैं भी बिजनेस कर पाऊंगा। उनका विल पावर जीरो हो जाता है। they want to do something but they think nahi, I am not worth it, I'm worthless, I cannot do it, nobody has hopes from me. And secondly, they don't want to communicate their problem with anybody। अंदर ही अंदर वो लोग अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतरेगी, बाद में वो जो सबसे छोटा घर में होगा बच्चा उसके ऊपर उतार देते हैं। तो वो ऐसे वो टॉक्सिक पेरेंटिंग जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। इट्स सो अलार्मिंग टू हियर दिस। मतलब मेरे तो गूज़बम्प खड़े हो गए जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि जैसे अगर हम घर की नींव भी सेट करते हैं, अगर हमें घर बिल्ड करना है और उसकी नींव सेट कर रहे हैं, अगर नींव स्ट्रांग है तो घर का वो पूरा ऊपर का वो ठीक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। द सेम वे गोज टू द पेरेंटिंग। अगर आप नींव ही पहले से यही दे रहे हो कि टैगिंग एंड नैगिंग एंड कंपेयरिंग एंड सो, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी उतने ज़्यादा, मतलब इतने वर्स्ट हो जाएंगे कि आप उस टाइम पे जाके ना तो बच्चे का रिलेशनशिप उसका पार्टनर के साथ ठीक कर पाएंगे, ना ही उसका मेंटल हेल्थ पे काम कर पाएंगे, ना ही इमोशनल हेल्थ पे काम कर पाएंगे। इट्स मीन्स इट्स सो अलार्मिंग दैट पेरेंट्स शुड गेट टू नो कि टॉक्सिक पेरेंटिंग में हमें नहीं पढ़ना है। सीरियसली मैम। मैम ये टॉक्सिक पेरेंटिंग में इतना भी मैंने देखा है कि बच्चे ना अपना हाथ काट लेते हैं। They start putting, I have a girl who comes to me for therapy, and when I saw her hand there were many cuts on her wrist. When I asked her, beta ye kya hai, why have you cut your wrist, boyfriend ka chakkar hai ki kya hai, is because of something. So she says my parents fight a lot and to control them I have cut my wrist. Once I cut my wrist, their full attention comes on me, then they stop fighting. Oh my goodness, my goodness.
अब मैं बोलती हूँ पेरेंट्स को, देखिए जहां दो बर्तन होते हैं वहां आवाज तो होगी, आप फाइट करो, इट इज ऑब्वियस इन अ रिलेशनशिप, बट प्लीज फाइट इन अ रूम वेयर द चाइल्ड इज नॉट देयर, आर्ग्यू इन अ रूम वेयर द चाइल्ड इज नॉट देयर, बिकॉज ये जो कर रहा है ना बच्चा, ये लॉन्ग टर्म में वो करेगा, फिर बाद में उसका बच्चे को देखेगा किसी के साथ आर्ग्यू कर, अपने उसका बच्चा आर्ग्यू करेगा, कभी वो कर दिया, कभी कोई गलत नस कट गई, अभी तो वो केयरफुली कुछ हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम ही होता है। हैपनिंग भी हो सकती है। सो मच, मतलब ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं, आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब खुद नहीं मैं तो वैसे पेरेंटिंग उसमें हूँ, लेकिन ये चीजें मैंने पहली बार देखी है कि इतना लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर, कि हस्बैंड वाइफ का झगड़े को भी है, वो लोग अपने ऊपर ही वो ले जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा ना लड़े, इट्स बेटर कि मैं अपने आप को ही हार्म कर लूं, बट इट्स टू। और यही देख के उनके फ्रेंड्स भी वही करते हैं, ओके। उनके फ्रेंड्स भी जब वो देखते हैं ना कि हाँ इसने अपना काटा और उसके मम्मी पापा ने झगड़ा बंद कर दिया, तो दे ऑल्सो डू द सेम थिंग एट देयर होम। मीन्स अब ये देखिए कि इमिटेशन जो है उस एज स्टेज पे कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, एंड डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। अगर आप अच्छी चीज इमिटेट करने के लिए दे रहे हैं तो पेरेंट्स बच्चे वो भी इमिटेट करेंगे, बट इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग थिंग्स अनइंटेंशनली, तो फिर वो बच्चे वो भी इमिटेट करके वो कर रहे हैं, मतलब नुकसान कर रहे हैं उस चीज को। इट्स रियली अलार्मिंग। So, the next question is, what are some of the underlying causes? अब जैसे ये पेरेंट्स कर देते हैं, इस टाइप से टॉक्सिक पेरेंटिंग कर देते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं? मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ये चीज को, तो क्या कॉजेज रहेंगे उनके पर्सपेक्टिव में, कि जिस टाइप से वो अपनी पेरेंटिंग इस तरीके से दिखा देते हैं? उनका मेन थिंग यही रहता है कि हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है। Okay. आप कोई भी पेरेंट्स से पूछो ना कि आप क्यों मारते हो अपने बच्चे को, मतलब बात करके भी तो सुलझा सकते हैं ना, तो बताए नहीं हमारी पेरेंटिंग तो वैसे ही हुई है ना, हमारे टीचर्स ने भी तो हमको स्कूल में मारा ही था ना, तो फिर हमने वही हमारे बच्चे के साथ करना है। और फिर दूसरा उनका ये रहता है कि बच्चा सुनता नहीं है, 2 बार बोल दिया 3 बार बोल दिया तो तीसरी बार तो मेरा हाथ उठेगा ही, पेशेंस। या हाँ, दूसरा आते ही जैसे ही बच्चा स्कूल से आया हम कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या किया आज पूरा दिन, कहाँ थे तुम, और टीचर ने क्या बोला, मतलब इट्स ऑल क्वेश्चंस। हम बच्चे के साथ बैठने नहीं देते, बच्चे को थोड़ा 2 मिनट बैठ जा, पानी पी ले, ना खाना खा ले, ऐसे करके बाद में सीधे से हम अपना रूटीन नहीं बताते कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया। देखो आज मैं, जैसे मदर इज एट होम, डैड इज इन द ऑफिस, सो मदर बोल सकती है ना आज मैंने ना ये आंटी के साथ गई थी बाहर शॉपिंग करने, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। आप एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो आपका बच्चा भी आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, लेकिन पेरेंट्स उल्टा करते हैं, दे स्टार्ट लाइक नहीं। एंड फिर बाद में बच्चा स्कूल से आया, पूरा दिन स्कूल में रह के आया, खेल के आया, स्पोर्ट्स पीरियड करके आया, तो थोड़ा सा ऐसे ही सोफे पे रिलैक्स हो गया, जूता इधर फेंक दिया, आई नो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, बट पेरेंट उसी समय ये कोई तरीका है, आई टोल्ड यू यूर गुड फॉर नथिंग, स्टार्ट दैट criticism, that continuous criticism, and at home child wants peaceful environment where he is not, or she is not giving getting it, तो वो भागता है, या तो फिर क्या करेगा, जाके सो जाए, पूरा दिन सोएगा, टू अवॉइड। because he wants to avoid. I have one case of a 13-year-old kid who came to me recently, and then मैंने उसको एक वर्कशीट दिया सॉल्व करने के लिए, उसमें एक क्वेश्चन था, whom are you scared of? So he said ghost and my dad. He said that. So I asked him, बेटा why your dad? तो पता है कोई भी रीजन नहीं होता है ना, मारना चालू कर देते, थोड़ा सा पानी का ग्लास नहीं ला के दिया तो मार दिया, जूते नहीं रखे कभी तो मार दिया, बैग नहीं रखा तो मार दिया। सो हम एज अ पेरेंट हमें लगता है कि नहीं हम तो बराबर कर रहे हैं, आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स, क्योंकि हम आपको वो अपब्रिंगिंग मिली है, लेकिन कभी आप बैठ के थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, नाप तोल करना चाहिए कि आप बराबर कर रहे हो, वाई योर चाइल्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, कभी आपने सोचा है? अब दूसरा एक होता है मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन से इंट्रोड्यूस कौन करता है बच्चे को? पेरेंट्स। बच्चा खाना नहीं खा रहा है,
तो चलो मोबाइल फोन दे दिया। पुराने जमाने में दादी वगैरह सब साथ में रहते थे, चिड़िया उड़ रही है देख, खाना खा करके खाना खिलाते थे, तब कोई मोबाइल फोन नहीं रहता था। उतना पेशेंस रहता था सब में कि 1 घंटा भी अगर मुझे बच्चे को खाना खिलाना है तो मैं 1 घंटा पकड़ के उसको खाना खिलाऊं। आजकल क्या ना, अरे इसको मोबाइल फोन दे दिया, कार्टून सीरीज लगा दिए, रख दिया सामने और बच्चे को खाना खिला रहे हो। बच्चे का तो ध्यान उधर है, खाना भी जा रहा है अंदर, बॉडी को लग रहा है नहीं लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेट भरा ना बच्चे का बद। बट उस समय आपके बच्चे का ब्रेन 3 टाइम ज्यादा वर्क कर, उसका ध्यान खाने में नहीं है, तो खाने का जो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो उसका जो ब्रेन 3 टाइम ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो हाइपर एक्टिव हो रहा है। और उसका एनर्जी बस्टिंग क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि आजकल ना कंपाउंड्स है। आप मुंबई जैसे उसमें देखो तो आजकल है ना, खेलने के लिए कोई जगह नहीं है बच्चों के लिए। आजकल बड़े बड़े कंपाउंड्स नहीं है, एक बिल्डिंग है थोड़ा सा है, उसमें भी पार्किंग प्लेस है, क्योंकि एक एक ओनर के पास 3 3 गाड़ियां हैं, तो बच्चे खेल नहीं पाते। बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दूसरे पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमारी गाड़ी को डैमेज कर देगा, नहीं खेलना है यहाँ पे। प्ले ग्राउंड कम है, राइट। तो बच्चा अपनी एनर्जी बर्स्ट किधर करे। तो वो लोग क्या करते हैं, नीचे भी बैठेंगे ना, आप देखना 10 बच्चे ना 10 मोबाइल पे बैठे। एब्सोल्युटली गॉट इट। बच्चे मोबाइल पे बैठे हैं, मोबाइल पे एक साथ बैठ के भी वही गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या जो भी वो फीफा गेम होता है वो सब खेल रहे हैं। बट सब वही है, टीम के में ही खेल रहे हैं, वो लोग एक टीम बना के खेल रहे हैं, लेकिन सब मोबाइल में। तो निकल। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी टू बर्स्ट योर एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट देयर। और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आई नो एवरीबडी इन दिस एरा हैज फॉट फाइनेंशियल स्ट्रेस बिकॉज द competition levels have increased. There is no family who is not suffering with financial stress. I can understand, but is it necessary to discuss it in front of your child? क्या जरूरी है उसको बोलना कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम लोग ने वो बेच दिया पैसे लाने के लिए, या हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम तेरी फुटबॉल फीस नहीं भर सकते, या हमारे पास पैसे नहीं है हम तेरे को ट्यूशन में नहीं डाल सकते। हम तेरा स्कूल फीस भर रहे हैं ना, उतना काफी नहीं है, अभी तेरे को ये भी चाहिए कि तेरे को एक्टिविटी में भी डालें हम। कहाँ से लाएंगे हम पैसा, हमारे पास तेरी दूसरा भाई बहन भी तो बैठा है। तो इसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या हुआ। आप उसको अलग तरीके से भी फ्रेम कर सकते थे कि बेटा अभी नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हाउ मच यू कैन गिव। फर्स्ट यू prove to me that you can go in that activity and perform well. Get up early, give them some tasks, give them some responsibilities, get up early, do this work, do this. I will see, watch you for 2 months, and if I feel you're doing it properly, you're taking your responsibility well, I'll put you in that activity. ये थोड़ा सा रहता है कि अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, वो भी एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का ही पार्ट है। Keep it to yourself, keep it to your spouse, don't get it to your kids. They are just building up, they cannot, लॉजिकल थिंकिंग अभी नहीं है उनमें। एक फूल है जो उग रहा है, उसमें लॉजिकल थिंकिंग कहाँ से आएगी, उसको मेंटेन करना है। आपकी इतनी सारी बातें सुन के ना मेरे को अपना एक बचपन का वो याद आ रहा है। मीन्स व्हेन आई यूज्ड टू स्टे विद आवर रिलेटिव्स। आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, नेटिव प्लेस मेरा दिल्ली है। एंड वी हैव बीन इन अ जॉइंट फैमिली, जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, मम्मी पापा, माय सिबलिंग, चाचा के बच्चे, सब लोग इकट्ठे थे। और वो टाइम ऐसा होता था कि किसी को यही नहीं पता चलता कि कौन किसका बच्चा है। मतलब इतना ज्यादा हम लोगों का अटैचमेंट और वो रहना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अभी जैसे बात चल रही है तो मैं ये शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं ज्यादा वो ये चीज को वो नहीं करती। मुझे ना दूध पीने से बहुत एलर्जी होती थी। मुझे दूध पसंद ही नहीं आता था जब मैं छोटी थी तो। और व्हाट माय मदर यूज्ड टू डू, शी इज द एल्डेस्ट बहू, तो घर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, फिर अपने नंदों को भी देखना, देवर और ये सब चीजों में बहुत सारे उसमें वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि शी यूज्ड टू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड माई हैंड, दादी जी के पास जाकर छोड़ देते थे, इसको पिला दो। और वो और वो चाहे 15 मिनट लग रहे, 20 मिनट लग रहे, वो इधर उधर, जैसे आपने बोला ना बेटा देखो चिड़िया उड़ रही है, ये खाना खा लो, वो रिकनेक्ट हुई है कि वो अपनी स्टोरीज बताते थे, अपनी अच्छी अच्छी चीजें, बेटा दूध में ये होता है, वो होता है, इतना अच्छा होता है, तो ये करके शी यूज्ड टू टेल अस। एंड मी एंड मैं कब पी जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। द बेस्ट पार्ट वाज दिस कि कब मेरा दूध फिनिश हो जाता था, नहीं तो मेरे को अकेले को दे दे तो आधा घंटा भी ना खत्म होने आए, वो वैसा हो जाता था कई बार।
तो दिस इज द नहीं, वो और सही आज है। का चैलेंज ये है कि पीपल आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज, इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस और बच्चों पे कंपैरिजन और अपना खुद का फ्रस्ट्रेशन इस पे निकालना, जो एक अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स की भी गलती नहीं है कि हाँ ये लोग न्यूक्लियर इसमें हो गए हैं, या चाहे कोई भी रीजन से हो, XYZ कोई भी रीजन हुआ हो, लेकिन एक उनको अवेयरनेस नहीं आ रही उस चीज की कि हाँ हमको बच्चों को के लिए ही हम कर रहे हैं और बच्चों के साथ ही हम ऐसा कर रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, बेसिक थिंग उसके लिए आई ही हैव। तो हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, अवेयरनेस जगाने के लिए। Yes, so true, so true, very true. Now, as we are coming to the last of this episode, मैम आपकी तरफ से कोई 3 nuggets, golden nuggets जो आप पेरेंट्स को आज देना चाहोगे फॉर दिस, एंड इफ यू वांट टू आई इंक्लूड दैट वुड, थेरेपी जो आप बता रहे थे कि प्रेशर थेरेपी, हाँ हाँ, तो प्लीज वो भी बताइए। या एक्यूप्रेशर की थेरेपी तो जब वो मेरे पास आते हैं मैं दे देती हूँ। लेकिन हाँ, फर्स्ट थिंग, self awareness. Parents, please sit and analyze yourself and see what is right and what is wrong. What wrong things you're doing in your parenting and what right things you're doing in your parenting. Just make in a sheet of paper and then research on it. Okay. There are many therapists who are sitting. There are many parent coaches who are there. You can take help from them. You can attend little workshops conducted by the parent coaches. And you can also Google Baba to hey. You can search on Google. There are many people who have written nice talks, and then you can analyze your parenting. Secondly, be a role model to your kids. Kids are like monkeys, they imitate you. आप जैसा उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे, आगे जाके वो भी वही बनेंगे. दे आर जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ यू. So if you are doing a positive parenting, please see that they will also do in their future. And then the third thing which I was saying, take yourself as a priority. हम बच्चों की दुनिया में अपनी दुनिया बसा लेते हैं और हम ये भूल जा सकते हैं कि हम भी आइडेंटिटी हैं, हमारी भी कुछ सेल्फ नीड्स हैं. So please prioritize yourself, go for exercise, do little relaxation and meditation, and you will see that you are becoming more refreshing. Your mind is becoming relaxed. Sing songs, do humming. Humming is the best exercise. वो आपके सारे स्ट्रेस दूर करता है. मेडिटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ओम चांटिंग ही सुनो या गाइडेड मेडिटेशन ही सुनो. कोई गाना जो आपको सूद करता है, हैप्पी करता है, आप अगर वो भी अकेले बैठ के सुन रहे हो ईयरफोन्स डाल के, दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन. और अगर आपको ज्यादा एंजाइटी है तो एक ब्लू कलर का पेन लेके आपकी इंडेक्स फिंगर की लास्ट जॉइंट को एक रिंग बना दो, Okay, ऐसे. lovely. Right. And you will see in some minutes your anxiety level goes down. Oh, और wow. ज्यादा एंजाइटी है, प्लीज प्लीज कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ पेरेंट कोच, एंड दे आर देयर टू हेल्प यू आउट. एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पेरेंटिंग इज कंटिन्यूअस लर्निंग. और अपने बच्चे की बातें सुने. व्हेन ही और शी इज कमिंग टू टॉक, अपना थोड़ा काम थोड़ी देर के लिए कीप इट असाइड, लिसन टू योर चाइल्ड and let your child know that you're there for them, to listen, to help them out. Because आजकल है ना बहुत तरह का अब्यूज होता है. सेक्सुअल अब्यूज होता है, इमोशनल अब्यूज होता है. जो इमोशनल अब्यूज है वो फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज से सबसे बड़ा होता है. और सेकेंडली अभी साइबर बुलिंग भी होता है. आपका बच्चा इंटरनेट पे रहता है, वहां पे साइबर बुलिंग होती है, तो बच्चे को बताने वाला कोई चाहिए, एंड दैट इज अ पेरेंट. Only a parent can get out the child, not his friend. Right. This is a request to all the kids also who are seeing this program. Anything happening in your child, even in your life, even if it's very bad, even if you know that if you go and tell your parents, they will shout or hit you, at least tell them, because they are the ones who will help you to come out of it. That is my saying. So it is a two-way journey. Parents have to take one step, kids will take 2 steps. एब्सोल्युटली, वाओ. जस्ट मतलब पूरा का पूरा आपने क्रक्स ही दे दिया ये चीज का. तो बच्चे अगर पेरेंट्स अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बच्चे आपसे आपके सामने से 2 कदम आगे बढ़ाएंगे. लवली मैम, लवली. सच अ ट्रू लर्निंग यू हैव गिवन टू द ऑडियंस.
एंड फर्स्ट थिंग जो मेरे को समझ आया कि एक तो पेरेंट्स को बैठ के अपने प्रॉस एंड कॉन्स देखने चाहिए कि कहाँ वो सही है, कहाँ वो गलत, आई वोंट से, क्योंकि उनके भी ऊपर स्ट्रगल्स होते हैं, तो कहाँ वो गलतियां कर जा रहे हैं जो उनको पता भी नहीं। एंड देन दे कैन कंसल्ट द पेरेंट कोचेज और द काउंसलर्स, जो भी मतलब जो भी इनके आगे आसपास जो है नियरली अवेलेबल हो। सेकेंडली, इमिटेशन जरूरी है, मतलब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका बच्चा करेगा। अगर आप गुस्सा बोल करके वो कर रहे हैं तो बच्चे भी आपको इमिटेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राम राम कर रहे हैं, इफ आई गिव एन एग्जांपल, आप राम राम बोल रहे हैं तो बच्चे भी आपसे तो वही। बच्चा भी राम राम बोलेगा। ट्रू। तो वो चीज के अंदर फिर आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, बच्चा भी इमोशनल से भी स्टेबल रहेगा, प्लस आपकी बॉन्डिंग भी उसके साथ स्ट्रांग होगी। एंड दी बेस्ट थिंग यू हैव टोल्ड अबाउट दैट, स्ट्रेस को खत्म करने का जो आपने ब्लू कलर का ये बनाया, आई डेफिनेटली डू। कभी कभार, हाँ, आई डेफिनेटली डू। और ये कुछ ऐसा टाइम लिमिट होता है कि जिसके अंदर ये स्ट्रेस लेवल वो हो जाता है खत्म, या You can put this color for 2 hours. ओके, Dark blue sketch pen. ओके, डन, डार्क ब्लू स्केच वाला, डन डन डन, आई एम लाइट ब्लू डेफिनेटली। मत लेना, इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, ओके, डार्क इट्स ब्लू गुड ही। दैट आई आस्क्ड, ग्रेट ग्रेट, इट्स गुड दैट आई आस्क्ड। कभी कभार हर किसी के साथ ही होती है ये चीज, सो यू पीपल कैन ऑल्सो फॉलो मैम कि किस टाइप से आप ये कर सकते हो। एंड डेफिनेटली मैम, मैं आपको नेक्स्ट टॉक शो में जरूर बुलाऊंगी कि आप इस टाइप की टेक्निक्स और शेयर करें हमारे साथ, कि कैसे श्योर श्योर हीलिंग मैम। और कैसे वो कर सकते हैं अपना, मतलब ऑनलाइन रह के भी अगर कोई पेरेंट्स या कुछ कोई लोग आपके पास फिजिकली नहीं भी आ पा रहे हैं, तो हाउ वी कैन हेल्प देम for this thing. This is a very beautiful thing I have also learned from you. लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, पेरेंट्स आप है ना अपने बच्चों के साथ थोड़े गेम्स खेलिए। Go Yes. outdoors with them. Not for movies, not for having dinner or lunch. बिकॉज वो टाइम तो आप है ना थिएटर में जाके सलमान खान और शाहरुख खान को दे रहे हो, अपने बच्चों को नहीं दे रहे हो। Go Absolutely. out on beaches, go out to the garden, play volleyball, play football, play badminton. At least अपने दिन का आधा घंटा. I know you all are very tired. I know you all are stressed from your work. See, it is a stress busters for you also. Yes. आधा घंटा बोर्ड गेम्स खेलो, लेकिन अपने बच्चों के साथ टीवी वगैरह बंद करके जस्ट बी विथ योर चाइल्ड। और फिर जो स्ट्रॉन्ग गोल्डन बॉन्ड बिल्ड होगा ना, आप लोग सच्ची विश्वास नहीं करोगे कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड हुआ जो लाइफ टाइम रहेगा। आपका बच्चा आपको रोज फोन करेगा और अपनी हर एक प्रॉब्लम शेयर करेगा। This thing personally I have also experienced. I have a 9 years old daughter, और मैं उसके साथ, उसको चेस खेलना बहुत पसंद है, उसको बिजनेस की गेम पसंद है, उसको मोनोपली पसंद है। मतलब हमारे टाइम पे तो ये बिजनेस और मोनोपली होती रहती है, हमें पता भी नहीं था। शी मेड मी लर्न दैट एंड देन आई एम प्लेइंग विद हर, और अब जाके ऐसा इतना अच्छा लगता है ना, फिर वो फोन भी कहाँ जाता है, कौन सा किसके साथ सेशन हो क्या है, वो सब चीजें बाद में हो जाती है। आई यूज आई यूज टू प्ले लूडो विथ माई मॉम। वाओ। मतलब बहुत, मैंने बहुत खेला है लूडो उनके साथ। सो आई रिमेम्बर, आई मिस दोज डेज व्हेन मी एंड माय सिस्टर यूज्ड टू सिट एंड प्ले विद लूडो। वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन टुगेदर। मतलब बहुत कुछ किया है हमने, तो वो जो मेमोरीज रहती है ना, वो बॉन्ड जो है ना, वो अलग ही है। Lifelong cherished with you. Great, ma'am. Great. हम्म। And thank you so much, ma'am, for coming today and giving such a beautiful learnings to our audience with a cute smile on your face. थैंक यू। Thank you so much for coming. And if you people also have any queries regarding this, any kind of a treatment you want, you can directly contact with ma'am. I'll be shooting this video on YouTube, and the link will be circulated all over with ma'am ka tag and her firm's ka link. So you can contact her, and stay safe, stay blessed, happy learning. Thank you so much. थैंक यू।